Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision, your biology mentor. In this today's session, we are going to discuss the paper from NTSC Stage 1, and that is from the state, that is UP. And the paper is of the year 2019. As we know that this paper is being done in two stages, NTSC Stage 1 and 2, NTSC Stage 2. तो NTSC स्टेज 1 का जो पेपर होता है दिस इज स्टेट वाइज एंड 2 इज नेशनल वाइज. सो डिफरेंट स्टेट्स के पेपर वी विल डिस्कस इन डिफरेंट सेशंस. एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे NTSC स्टेज 1 पेपर दैट इज 2019 ऑफ द स्टेट UP, right? So we'll find many questions from science in this paper, and from biology section we'll get around 13 to 14 questions. Sometimes it may ask 13 questions and sometimes it may ask 14 questions from the biology section. And for NTSC exam you must be knowing आपको अगर NTSC एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th एंड सिलेबस क्लास 9th एंड 10th सिलेबस दैट कंप्राइजेज द सिलेबस ऑफ द NTSC एग्ज़ाम. ठीक है, तो हम इसको क्लास 10th में देते हैं, लेकिन सिलेबस आपको 9th का भी अच्छे से मालूम होना चाहिए. We'll find questions when we'll discuss the paper. We'll find questions that is asked from the topics which is in your NCERT class 9th. ठीक है, तो आई गेस इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या सिलेबस है हमारा फॉर क्लास 9th. तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर. शुड वी स्टार्ट द पेपर? ओके बेटा. ओके, मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड टुडे. Just a second. Okay, there are many students. Alish, Mrinal, Disha, Shubham, Devraj, Muskan, video. Okay. One thing I wanted to say, please put your video on, everybody. I love that because that will be the class will be then interactive. Please put your video on, everybody. I want to see your faces, so that I may also get motivated to teach you much and much. ठीक है, अपना वीडियो ऑन रखो सब. I'm going to ask the questions as well to everyone. Okay, question number 1 of 2019 NTSC stage 1. That is, number of male gametes present in pollen tube are. है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि pollen tubes में कितने मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. Option A 1, option B yes, we got the answer actually, but we need to discuss this also before reaching to the right one. Option A says 1, option B 2, option C 3, option D 4. So let's discuss what are the number of the male gametes present in the pollen tube. देखो, अब ये क्वेश्चन उठाया है आपका प्लांट किंगडम से, and the question is about angiosperms, the flowering plants. है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म्स के बारे में. एंड देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. दैट इज, नाउ व्हाट डज फर्टिलाइजेशन मीन्स? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स. That is, one of the sperm, male gamete, and the other is female gamete, that is ovum or the egg. है ना, तो ये process क्या हो गया आपका? fertilization. When the fusion of the two gametes comes respectively from male and female, it results into the formation of a structure that is called as zygote. We know that male gametes are haploid in nature. So the 2N, that is N from sperm and N from ovum, becomes zygote and leads to the structure diploid cell, which is 2N in number. ठीक है, तो double fertilization comprises fertilization, number 1. Number 2, it comprises triple fusion. It comprises triple fusion. Now, what does triple fusion means? Triple fusion means it involves 3 nuclei. Now, from where does these 3 nuclei comes from? है ना, देखो, एक मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट
तो one of the nucleus comes from this one male gamete and the two polar nuclei which is already present in the pollen tube, है ना, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होता है. मेल गैमीट इज प्रेजेंट इन दी पॉलन ट्यूब एंड द टू पोलर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन दी ओव्यूल. ठीक है. सो द ट्रिपल फ्यूजन मीन्स द फ्यूजन ऑफ द 3 न्यूक्लियाई. सो देखो हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कब करेंगे? व्हेन वी हैव 2 मेल गैमीट्स. 2 male gametes, one male gamete fuses with the egg to produce zygote and the other male gamete fuses with the 2 polar nuclei to form the triple fusion, and these two together called the double fertilization. तुमने टॉपिक पढ़ लिया ह्यूमन, आपका जो क्लास 10th में है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये टॉपिक पढ़ा है तुम लोगों ने अभी? yes, ma'am. तो उसमें इसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने, डबल फर्टिलाइजेशन, यस और नो? लिटिल बिट. ओके. सो देखो अगर 2 गैमीट्स होंगे तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा. एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म, है ना. एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एंड दिस यू नो, ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये स्ट्रक्चर लीड्स, दिस फ्यूजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स, दिस फ्यूजन रादर फॉर्म्स द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, है ना. न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये, विच इज प्रोड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म. न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म होता है and it is going to provide the nutrition to the zygote to convert it into an embryo. तो ध्यान रखना है. हमें एक बात और भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पे रीफ्रेम हो सकता है क्वेश्चन. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बाद में बनेगा. जाइगोट के साथ जब जाइगोट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तुरंत उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन. क्योंकि हमें न्यूट्रिटिव टिश्यू की जरूरत है टू कन्वर्ट जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट स्टेप विल बी दी फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म विद दी फीमेल एग, दैट इज फर्टिलाइजेशन. सेकेंड स्टेप विल बी दी अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद दी 2 polar nuclei and the resultant is endosperm, which is a nutritive tissue that is going to provide the nutrition to the developing zygote. ठीक बात है. सो तभी तो ये सारा प्रोसेस कब होगा? when there are 2 male gametes present in pollen tube. सही बात है? यस और नो? है ना. तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? 2. बिल्कुल सही बात. सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं जानना कि हमें कि पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, इसलिए हमने आंसर 2 मेल गैमीट, आंसर इज 2 मेल गैमीट, इसलिए ऑप्शन 2 हो गया हमारा. हमको ये भी जानना है कि ऐसा क्या इवेंट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट आर एक्चुअली 2 मेल गैमीट्स, है ना. तो इवेंट क्या है हमारा? यस, व्हाट इज द इवेंट? एनीबडी? इवेंट इज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन, है ना. एनिमल हार्मोन कौन सा होता है ये बताना है आपको. वेरी सिंपल, है ना. इंसुलिन इज द हार्मोन. Let's discuss the hormones as well. Let's read the option. Absolutely correct. Everyone is correct. बहुत simple सा है. Auxin plant hormone, gibberellin plant hormone, abscisic acid plant hormone, है ना. तो इंसुलिन जो है हमारा वो क्या है? एनिमल हार्मोन है. अच्छा, आप में से कोई बता सकता है? आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो. इंसुलिन इज द एनिमल हार्मोन. बट आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग ओवर हियर, दैट इज इंसुलिन की हम बात करेंगे तो हमारा बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन बनाता है? दिस इज आई वांट टू नो. पेनक्रियाज. एब्सोल्युटली. पढ़ने वाले बच्चे हो, लग रहा है बायो पढ़ रहे हो. दैट मीन्स एनटीएससी क्रैक करना चाहते हो, आई मीन डेस्परेटली. सही बात है. देखो ऐसे ही पढ़ते रहोगे. यस दिशा? हाँ बिल्कुल. देखो हार्मोन की बात करें ना तो हम जानते हैं कि हार्मोन कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो पेनक्रियास दैट मींस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. इज इट ट्रू? अगर मैं ऐसे बोलूं यस, वेरी गुड बेटा. पेनक्रियास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. ध्यान रखनी है ये बात हमें.
ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन तो एंडोक्राइन ग्लैंड से पूछा है ना. वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन, इसी में शायद आ जाएगा आपके, कि जिसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियास का काम करेगा जब वो पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है ना. जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है. हमेशा ध्यान रखना, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा, हार्मोन्स को बनाएगा, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा, एंजाइम्स को बनाएगा. यानी कि क्या सीक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा. पेनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स. कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, और बन भी चुके हैं. यू विल फाइंड लास्ट पेपर आई गेस आई वाज डिस्कसिंग विद यू, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था पेनक्रियाटिक जूस से, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस, है ना. तो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना. तो पेनक्रियास इज अ हेट्रोग्लैंड, बिल्कुल सही बोला. आप में से किसी ने बोला था अभी दैट पेनक्रियास इज अ हेट्रोग्लैंड. कौन बोला था, बिल्कुल ओके, ईशानवी ने बोला था. ईशानवी बिल्कुल सही बच्चे. तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है. एंडोक्राइन जो पार्ट है इसका हार्मोन बनाता है. वन ऑफ द हार्मोन इज इंसुलिन. कैन यू टेल मी वन ऑफ यू सेड कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग. कैन यू टेल मी द अदर हार्मोन विच इज सीक्रेटेड, एब्सोल्युटली इट इज व्हाट, इट इज ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन. बिल्कुल सही बात, पढ़ के आए हो आज लग रहा है. हाँ, वेरी गुड. यस, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा. तो अच्छा एक बात और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जब तुम लोग को इतना मालूम है तो पेनक्रियाटिक जूस को हम रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, है ना. क्या बोलते हैं, रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस. क्यों बोलते हैं रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस, इसलिए बोलते हैं, एब्सोल्युटली शुभम बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे, कि पेनक्रियाटिक जूस के पास हैज एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. चाहे वो कार्ब्स हो आपके, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो. इट कैन ब्रेक डाउन एनी न्यूट्रिएंट एंड ब्रिंग इट इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म. ठीक है, तो इसलिए पेनक्रियाटिक जूस को हम रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं. वील डिस्कस द एंजाइम लेटर ऑन इन सम अदर वीडियो. वील डिस्कस इन डिटेल हाउ. नहीं बेटा, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, रिपीट बच्चे. क्या पूछ रहा है, फूड के डाइजेशन तो हमेशा स्टमक में होते हैं ना. नहीं, फूड का डाइजेशन हमेशा स्टमक में क्यों होगा, फूड का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. फाइनल डाइजेशन तो फूड का कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा. ठीक है, फूड का डाइजेशन आपके माउथ में भी होता है, आपके स्टमक में भी होता है, एंड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ना. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डाइजेस्टेड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना. तो जब हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे देन आई विल लेट यू नो कि किसका डाइजेशन कहाँ होता है और कौन सा एंजाइम जरूरी है उस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, so that we'll discuss later, or I'll tell you with the help of the questions only given in the exam, given in the paper. ठीक है, as if now इतना समझो कि pancreatic juice is the richest digestive juice. Why? Because it has the enzyme for the digestion of every kind of nutrient. Pancreas worked in both the ways. Heterogland है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है. अगर एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है तो हार्मोन्स बना रहा है. हार्मोन्स आर इंसुलिन एंड ग्लूकागन. अगर एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है तो डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, समझ आ गई बात सबको. ठीक है, रेस्ट आर व्हाट, ये क्या है, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या है, दीज आर ऑल फाइटो हार्मोन्स, दीज आर ऑल प्लांट हार्मोन्स. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे. यस, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज. सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, यस, कई बार डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने क्लास में. बिल्कुल सब सही बता रहे हो, बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है क्लास में हम लोगों ने.
आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया. अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हो, yes, water is being actually formed during the photosynthesis. The source of oxygen is, sorry, the source of oxygen is water. Oxygen is formed from the water. And you must be knowing that photosynthesis occurs in two steps. What are the steps? Yes? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, है ना. दो स्टेप्स में होता है, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो अगर लाइट रिएक्शन की बात करें, चलो ये तो आपने मुझे बता दिया कि ऑक्सीजन कम्स आउट फ्रॉम द वाटर. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग. कैन यू टेल मी दैट इन विच रिएक्शन डज वाटर इज फॉर्म्ड, लाइट और डार्क? इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, है ना. ऑक्सीजन कहां बनेगा? जब लाइट रिएक्शन चलेगा, है ना. पहले सबसे पहले स्टेप क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल, and then chlorophyll get excited to their higher energy level. So first step is of the light reaction is excitation of chlorophyll molecules. ठीक है. Number 2 is the photo-oxidation of water. That means the breakdown of water in the presence of light. And when this water is broken down, that resultant will be, that is lead to the formation of oxygen, which is released as byproduct in the atmosphere and is our survival gas. ठीक है. इसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा? द थर्ड स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन. मालूम है आपको इन स्टेप्स के बारे में, तीनों स्टेप्स के बारे में? थर्ड इज ओके फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें हम क्या बनाएंगे? एटीपी एंड एनएडीपी. ठीक है. और यही एटीपी और एनएडीपी हमारे को कब काम आएगी? डार्क रिएक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड इन द डार्क रिएक्शन. व्हाई डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. उसको लाइट की जरूरत नहीं होती डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए. उसको किसकी जरूरत होती है? द प्रोडक्ट्स विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. समझ आ रही है बात? है ना. सो दिस लाइट रिएक्शन फॉलोड बाय डार्क रिएक्शन एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस. बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने आपको, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, है ना. जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व एंड मेनी फीचर्स आर इन्वॉल्व, बट दैट इज नॉट द पार्ट एज इफ नाउ फॉर एनटीएससी स्टेज 1. अभी सिर्फ इतना समझो दैट ऑक्सीजन कम्स आउट फ्रॉम द वाटर ड्यूरिंग वन ऑफ द स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर. दैट्स इट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is known as the currency of the energy? चलो बिल्कुल ठीक बात है. This is ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? Yes, बिल्कुल सही बात. इट इज एटीपी एक यूनिट है ना? नहीं, यूनिट नहीं बोलेंगे. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज नॉट एन यूनिट, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. विल नॉट कॉल इट एज यूनिट बेटा. ठीक है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे. विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया. बिल्कुल सही बात. दैट इज व्हाई yes, that was my next question is that is why mitochondria is called the powerhouse of the cell, है ना. तो provides the energy to the cell. Simple ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following cell organelle provides the energy to the cell? That is mitochondria. ठीक है. अच्छा, एक चीज यहाँ पे चलो डिस्कस कर लेते हैं. दो डीएनए एंड आरएनए इज नॉट द आंसर्स. डीएनए आरएनए क्या है बता सकते हो? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड आरएनए. Yes, it is deoxyribonucleic acid, it is ribonucleic acid. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा. ये सी दिस इज, हाँ, यस. व्हाट इज एनएडी? सही बोल रहा है कोई? नो. यस बेटा. This is again a source of the energy present in the plants. ठीक है. But that is not used up or released related to the photosynthesis बेटा. Okay बेटा. Next कर लेते हैं. Food synthesizes in leaves is transported by simple one phloem. है ना. पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? चलो ये बताओ. सॉरी. हाँ,
जाइलम, ठीक है। पानी की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे प्लांट्स में, देन विल कॉल जाइलम। और अगर खाने की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे प्लांट्स में, सो दैट विल बी फ्लूएम, ठीक है। कैम्बियम क्या होता है, पता है कुछ? कैम्बियम, व्हाट इज कैम्बियम? फ्लोएम तो स्टोर करके रखता है ना। किसको स्टोर करके रखता है? हम फ्लोएम फ्लोएम किस चीज को स्टोर करके रखता है बेटा फ्लूएम? हम जो एनर्जी देता है। The phloem is actually a complex tissue in the plants that helps in the transportation of the food. Okay, okay बेटा? ओके मैम। है ना कैम्बियम? Exactly, but obvious सी बात है, when the metabolic function is there, definitely it uses the energy, है ना? चलो next पढ़ लेते हैं कैम्बियम। कैम्बियम बता सकते हो which is responsible for which function in the plant? It is responsible for these. Yes. Who told this? Who's this? शुभम ने बिल्कुल ठीक बताया। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर है प्लांट पार्ट्स की, है ना, आउटर लेयर है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी हम डिस्कस कर रहे थे, सम क्वेश्चन वाज देयर रिलेटेड टू दिस। आई टोल्ड यू दैट दिस लेयर हैज अ वैक्सी कवरिंग। उस वैक्सी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? यस, यानी कि आप लोग ने सेशन बहुत ध्यान से सुना है मेरा और पढ़ा भी है उसके बाद अच्छे से, बिल्कुल सही। इट इज द क्यूटिकल which is the external waxy covering of the epidermis. One more point I discussed with you, that is it is not the continuous layer, है ना। देखो आउटर कवर पे अगर कवरिंग होगी और कंटिन्यूस होगी तो मेटाबॉलिक फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस तो स्टॉप नहीं होने चाहिए ना प्लांट्स की, विच इज ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इट शुड बी कंटिन्यूअस। सो दैट इज व्हाई दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान रखनी है बात हमको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिर्फ ये लिख, यस, अरे आपने पूरी कवर, जहां पे पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपने उसको कवर कर दिया, तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, कैसे वाटर लॉस होगा, है ना। तो मेटाबॉलिक फंक्शन विल हिंडर, है ना। एंड देन इफ मेटाबॉलिक फंक्शन हिंडर, हाउ विल प्लांट सर्वाइव? सोचने की बात है, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी अपने सारे मेटाबॉलिक फंक्शन करने दो ना, क्यों उसमें इंटरफेयर करें हम? सही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे। दिस ऑर्गन कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी सिंपल, आप लोग ने सबने पढ़ा है ना। ए ए ए, बिल्कुल ठीक बात, ए इज द आंसर। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? हाँ, इट इज एन स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे मानो कोई गर्म चीज छू रहे हो आप और एकदम से हाथ उठा लोगे पीछे, है ना। इफ यू बीन टच्ड बाय सम हॉट ऑब्जेक्ट, इमीडिएटली यू विल पुल योर हैंड अवे। So that is reflex action, immediate involuntary action, है ना। And that is initiated at the level of spinal cord, but regulated by your CNS, that is your brain. लेकिन हाँ, initiate कहाँ से होता है? At the level of spinal cord, ध्यान रखनी है। इसमें ना एक आर्क पे क्वेश्चन भी आता है, रिफ्लेक्स आर्क पे, है ना। तो उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क आपकी क्लास 10th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूरल सिस्टम टॉपिक में, उसको देखना। डायग्राम भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क का। मीन्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, क्या क्या इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स आर्क में, आपको उसमें ये बताना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क पे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन पे भी क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर, इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हर्बेशियस प्लांट गटेशन टेक्स प्लेस बाय, है ना। गटेशन कैसे होता है हर्बेशियस प्लांट में, आपको ये बताना है। आई एम रीडिंग द ऑप्शंस, दैट इज टोमेटा, हाइड्रोथोट्स, रूट हेयर एंड फ्लावर्स। पहले ये बताओ मुझे व्हाट इज गटेशन। तेरा आंसर सही है बच्चे, यू आर राइट बेटा, इट इज द हाइड्रोथोट्स, है ना। लेकिन व्हाट इज गटेशन? इज इट ट्रांसपिरेशन ओनली? नो, गटेशन इज नॉट ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन हम क्या पढ़ते हैं? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर from plants, that is transpiration. लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक बात, गटेशन इज what? Loss of water in the form of water droplets, है ना। और कहाँ से होता है ये loss in the form of water droplets? Suppose this is the structure of leaf, है ना, and at the margins of the leaves there are the pores present, ठीक है। और वहीं से this loss of water takes place in the form of the droplets, and these pores are what? These are hydrothotes,
ठीक है, ध्यान रखनी है हमें ये बात. These are hydrathodes. So loss of water in the form of water droplets, that is guttation, and it takes place through the margins of the leaves which is present in the form of pores, that is hydrathodes. ठीक बात है, समझ आ रही कहानी? Yes. And these also have guard cells. No, it doesn't have guard cells. Guard cells is the structure of the stomata vita. Okay, bean shaped guard cells. Which of the following is known as the master gland? बायो को अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है मुझे. And I love that. Everybody is answering and everybody is enjoying the class, is loving the questions. तो मतलब NTSC stage 1 तो सब निकालने वाले हो, है ना? इन्फिनिटी का नाम रोशन करने वाले हो, टीचर्स का नाम रोशन करने वाले हो, और अल्टीमेटली योर पेरेंट्स विल बी प्राउड पेरेंट्स, है ना? मतलब बायो में तो पक्के हो बिल्कुल, बाकी और सब्जेक्ट्स भी पक्के कर लो अपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी एंड मैथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नीट, आई मीन सॉरी नॉट नीट, एनटीएससी स्टेज 1 के लिए. तो बायो में तो आपके नंबर पक्के हैं जिस हिसाब से आप लोग आंसर कर रहे हो. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड? Absolutely, master gland is pituitary gland which governs the other gland. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सबसे. Pituitary gland is a master gland as you told, absolutely correct. But then what is the master of master gland? Hypothalamus. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही शौर्या, तने, absolutely correct. It is the hypothalamus which is the master of master gland, and it is situated in, कहाँ present होता है ये? It is present in your, कहाँ present होता है? It is present in your brain, hypothalamus. हाँ, बिल्कुल सही बात सार्थक, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा. Present in your brain. Basically it is what? It is a neuroendocrine structure. It is a neuroendocrine structure. Yes? Are you asking something beta? Srishti? चलिए, हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रक्चर. ये जो है न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, कुछ हार्मोन्स भी बनाता है ये. सो दैट विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड हाउ इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस विच इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. That is the hypothalamus and the master gland is pituitary gland. है ना? आपकी क्लास 10th में टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा इस टॉपिक को. पढ़ा है सबने? यस और नो? है ना? तभी आंसर कर रहे हो. ओके, यू पीपल आर एंजॉइंग बायोलॉजी, दैट्स द बेस्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following group of plants are also called as naked plants, naked seeded plants rather. Okay, algae, ferns, gymnosperms, moss. Everybody is giving the right answer. बिल्कुल सही, आप लोग सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना? नेकेड सीड किस में प्रेजेंट होते हैं? नेकेड सीड्स किन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करनी है. देखो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. यू पीपल आर राइट, एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर, बट यू शुड नो द अदर ऑप्शंस एज वेल. यू नो, algae belongs to the group that is what? Thallophyta. थैलोफाइटा ग्रुप होता है. प्लांट्स डिवीजन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा बताया था दैट प्लांट बेसिकली 2 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज क्राइप्टोगैम्स एंड फेनारोगैम्स. क्राइप्टोगैम्स की बात करें, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, क्राइप्टोगैम्स एंड इट इज व्हाट? फेनारोगैम्स. ठीक है, तो अगर क्राइप्टोगैम्स की बात करें, इट इंक्लूड्स व्हाट? It includes Thallophyta, it includes Bryophyta, and Pteridophyta. Absolutely correct. है ना? और अगर Phanerogames की बात करें, so it includes what? That is Gymnosperms and Angiosperms. है ना? बिल्कुल सही बात. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? नेकेड सीड की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में नेकेड सीड जिसमें प्रेजेंट होता है. तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 एल्गी, इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा, यानी क्राप्टोगैम है ये. ठीक है, फर्न की बात कर लेते हैं. फर्न्स आर व्हाट? इट इज दी टेरिडोफाइट्स. मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स.
तो बेसिकली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इज गिवन इन द अदर ऑप्शंस. जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ ओवरी. ठीक है, दे आर नेकेड सीड प्रेजेंट. तो उस केस में क्या आएंगे, हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जिम्नोस्पर्म्स. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज नेकेड सीडेड प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म्स, आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. व्हाट डज नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट्स सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मटेरियल? सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनटीएससी स्टेज 1 बायोलॉजी में. सब कर दोगे? 14 क्वेश्चंस आते हैं, 13 to 14 क्वेश्चंस. तो मतलब इतने नंबर तो पक्के हैं आपके बायो में, सबको मालूम है, सबने पढ़ा है ना. ये अपर जो दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन, ए प्रोटीन, बी कार्ब्स, सी विटामिन्स, ये सब क्या है? टेल मी, व्हाट आर दीज? दीज आर न्यूट्रिएंट्स, है ना. ये तो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, विच वी इनटेक इन प्रेजेंट इन फूड. प्रोटीन्स है ना, बॉडी बिल्डर्स. कार्ब्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी. विटामिन्स आर द प्रोटेक्टिव फूड, है ना. तो दीज थ्री आर द nutrients which is present in the food. Nucleic acid, चलो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. You people all you write that nucleic acid is a genetic material. ठीक है. Two types of nucleic acids are okay, DNA and RNA. बिल्कुल ठीक बात. तो if I ask you out of these two which is genetic material, फिर क्या करोगे आंसर? हाँ, बिल्कुल सही बात. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना. क्या ये पॉसिबल है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? हाँ, यस और नो? हाँ, एक्चुअली देर आर सर्टेन वायरसेस, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने. देर आर सर्टेन वायरसेस इन विच आरएनए कैन बी एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. दो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल अनडाउटेडली, है ना, बट देर आर सर्टेन लोअर ऑर्गेनिजम्स इन विच आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, समझ आ रही है बात सबको, है ना. एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं. देखो, डीएनए की बात करते हैं ना, तो डीएनए कुड बी टू टाइप्स. डीएनए कुड बी टू टाइप्स. ईदर इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड, मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे डीएनए को जिसके दो स्ट्रैंड होंगे डबल स्ट्रैंडेड. जिसका एक ही स्ट्रैंड होगा उसे क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड. सेम गोज विद आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल एंड स्ट्रैंडेड. तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, इट कैन बी आस्क्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि डीएस डीएनए बेसिकली दिस इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल. जनरली यही जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएस डीएनए. देयर आर ऑर्गेनिजम्स इन विच एसएस डीएनए इज प्रेजेंट, so we will not discuss that, but then there are organisms in which ss dna is also act as genetic material. लेकिन most commonly this is the ds dna is the genetic material. ठीक बात है? Yes, ds means double stranded, so double stranded dna is the most common one. ठीक है. चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. मजा आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना आज, है ना. कौन से ईयर के मालूम है ये? इन विच ईयर इट इज आस्क्ड? यस. कौन से स्टेट के? अपने ही स्टेट के हैं जहाँ पे हम रहते हैं, इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि आपसे भी पूछा जा सकता है. एंड यू विल फाइंड व्हेन यू विल डिस्कस द पेपर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स ना, लास्ट 10 years पेपर्स देखोगे ना, तो आप देखोगे दो रिपीटेशंस ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर बट द लिंकेज इज देयर. दैट मीन्स मेनी क्वेश्चंस आर देयर विच यू विल फाउंड कि इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है. यस. देखो, मोस्ट जनरल टॉपिक्स जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आप जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं जो जरूर पढ़ के जाए, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देयर आर टू. नंबर 1 इज एनिमल न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन, एंड नंबर 2 इज न्यूरल सिस्टम एंड कंट्रोल, आपका जो न्यूरल सिस्टम है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना. जो आपके 10th में टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, न्यूरल सिस्टम वाला,
उसको ज़रूर पढ़ के जाना पूरा टॉपिक। आप मान के चलो कि इन दोनों टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चन तो हर साल आए हुए हैं। आप देखोगे जितने पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी तक, सब में आपको क्वेश्चंस मिले हैं डाइजेशन के या न्यूरल सिस्टम के। मिले कि नहीं मिले? यस मैम। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। प्लांट की बात करूं तो प्लांट में प्लांट किंगडम जो टॉपिक है, प्लांट किंगडम बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ दी, जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बिफोर लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज दी डिफरेंट ग्रुप्स इन केस ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा मतलब बहुत डीप नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ सरफेस नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा प्लांट कौन से ग्रुप में है, उसकी क्या 1-2 स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दैट। ठीक है, तो प्लांट किंगडम, एनिमल न्यूट्रिशन, न्यूरल सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? बता सकते हो? यस, बिल्कुल सही, सब सही। ये सी किसने बोला? सी इज नॉट द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यस, इट इज जोहान ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, है ना। तो ये इन्होंने बहुत सारे हमको थियरीज दी हैं अबाउट जेनेटिक्स। 10th क्लास में आपका टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पढ़ा है उसको तुम लोगों ने? अभी पढ़ लिया? यस और नो? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब उसको डीपली थॉरोली पढ़ोगे। एंड यू वोंट बिलीव, आई मीन इफ यू फाइंड द पेपर्स एनटीएससी स्टेज 1, स्टेज 2, केवीपीवाई, आप जब 11वीं में पहुंचोगे तो उसमें आप यूल फाइंड अ पेपर केवीपीवाई, जिसके लिए आप ज़रूर पढ़ना चाहोगे जब आप एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो। तो so genetics, I mean heredity and evolution, which you are learning in class 10th, is the base of genetics. तो ये मान के चलो ये टॉपिक तुम्हारा जितना अच्छे से तैयार होगा क्लास 10th में, उतने ही अच्छे से तुम बायो के लिए प्रिपेयर होगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई एम डिस्कसिंग KVPY पेपर एज वेल विद दी स्टूडेंट्स, NTSC स्टेज 2 पेपर विद दी स्टूडेंट्स, एंड आपके भी इसमें मिल जाएगा हमें एक क्वेश्चन ज़रूर। हर साल इन कॉम्पिटिशन्स में 1 या 2 क्वेश्चन उस टॉपिक से ज़रूर आता है। सो आई प्रेफर कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और अपना बेस अभी से ही क्लियर कर लें। आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस टॉपिक से ज़रूर आता है, राइट बेटा? तो हमको अपना बेस अच्छे से बनाना है, वो टॉपिक प्लीज डू इट थॉरोली, ओके? ये दिस इज वेरी सिंपल। ये तो आपको जब अपना पन्ने खोलोगे ना एनसीईआरटी के, बिल्कुल पेपर पेज 1 पे मिल जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स जोहान ग्रेगर मेंडल। चलो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लमार्क, चार्ल्स डार्विन एंड दी व्हाट, ह्यूगो डे विरेस, है ना। तो ये कौन, ये बेसिकली इन्होंने किसके लिए काम किया है? एक एक 2-2 लाइन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। लमार्क इज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, है ना। मतलब कि उन्होंने बताया कि देयर इज नो फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज जैसे हैं ऐसे कभी नहीं थे, हम लोग इवोल्यूट होके ऐसे हुए हैं। पहले हम ऐसे नहीं थे, आज हम इवोल्यूट होके ऐसे हुए हैं। तो बेसिकली व्हाट ही डिड, he give the idea of evolution. He talk about the fixity of species. So he was the first person to talk something about evolution. ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, चार्ल्स डार्विन जानते हो? ये सब लोग जरूर जानते होंगे चार्ल्स डार्विन। हाँ, theory of natural selection. He also proposed theory of natural selection. आप पढ़ोगे अभी आपकी क्लास 10th में, अगर आपने एवोल्यूशन नहीं पढ़ा है अभी तो आपकी किताब एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया हुआ है। ह्यूगो डे विरेस, इन्होंने क्या किया? Who said this? Absolutely correct. शुभम, this is you बेटा। He proposed mutation theory, है ना। He proposed mutation theory. तो ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस इतना समझ लो कि किसने किसके फील्ड में काम किया है और क्या कौन सी थियरी प्रपोज की है। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जब आपके को इससे पूछ सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनसे भी पूछ सकते हैं। तो वी विल नॉट गो डीप इनटू इट, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। Mutation is actually, you know, the ultimate source of evolution.
म्यूटेशन थ्योरी इज अ वेरी लॉन्ग थ्योरी. बेसिकली देखो हम जब बात करते हैं ना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वी नो दैट वेरिएशंस अकर्स बिकॉज द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड देन द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस. ठीक है, इतना मालूम है सबको ये चीज, है ना. नाउ इवन अब देखो ए सेक्शुअल की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी से दैट द आइडेंटिकल क्लोन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि वन पेरेंटल है, यूनि पेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर आपका रिकॉम्बिनेशन तो बने ही नहीं, वेरिएशंस तो आएंगे ही नहीं. सही बात है. तो फिर लेकिन बट even in asexual reproduction, in a very long period of time, variation can takes place with the help of this mutation given by Yugodo Virres. बात समझ में आ रही है? ये जो आपका म्यूटेशन दिया है ना इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को, even in asexual reproduction within a long period of time, variations can occur with the help of mutation. Getting my point? तो mutation is the ultimate source of वेरिएशंस. ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग थ्योरी, अगर आप लोगों को पढ़ना है सो विल डिस्कस इन सम सेशन. ठीक है, बट दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये बात ध्यान रखेंगे हम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल इज मेड अप ऑफ फंजाई? है ना, सब सही बोल रहे हैं. खाते हो मशरूम तुम लोग? यू पीपल ईट? हाँ, very nutritive value, having lots of protein in it. मशरूम का साइंटिफिक नेम इज अगैरिकस. लिख लो ये नोट्स, एक अब नोटबुक बनाना अपने, जितना भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. दिस इज अगैरिकस. ठीक है, तो मशरूम इज एन एडिबल फूड एंड फूड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ फंजाई. इट इज वन ऑफ द फंजाई, है ना, बिलोंग्स टू द किंगडम फंजाई एंड इट इज एडिबल. हम इसको खा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओके, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग्स हार्ट? सी, बिल्कुल सही बात. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना. ट्रांसपोर्टेशन में अपना तुम लोग एनसीईआरटी खोलोगे तो पेज 1 पे ही मिल जाएगा. 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट, है ना. So frog is an amphibian and amphibian has 3 chambered heart. That is what? 2 auricles and 1 ventricle. ठीक है, तो ध्यान रखना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है. और भी इस तरह से जैसे इसके बारे में पूछा है, आपसे पूछ सकते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट है, तो किस में प्रेजेंट होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट? फिशेस. 4 चेम्बर्ड किस में प्रेजेंट होता है? चलो ये बताओ, है ना. रेप्टाइल्स में होता है, किसी में, किसी रेप्टाइल्स में भी होता है. हाँ, बिल्कुल सही बात, 3 होते हैं. यस, शौर्य इज करेक्ट. क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल एंड क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, है ना. देखो क्रोकोडाइल नहीं बोलेंगे, क्रोकोडाइलस इज अ ग्रुप ऑफ द रेप्टाइल्स जिसमें देयर आर 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट, है ना. तो उसमें आपके क्रोकोडाइल्स भी आ जाएंगे, एलिगेटर्स भी आ जाएंगे. तो उन ऑर्गेनिजम्स में, उन रेप्टाइल्स में इट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट. अदरवाइज द रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, समझ आ रही है बात? यस. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन हेल्प्स इन द फ्रूट राइपनिंग? सही क्वेश्चन हमें मिल गया, सही आंसर मिल गया चैट बॉक्स में. एब्सोल्युटली राइट बेटा. The options are auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, है ना. तने, अर्जित, absolutely correct, है ना. This is the option number D. Ethylene is actually responsible for the ripening of the fruit. ठीक है, बाकी भी these are the growth promoters and this is the growth inhibitor, but this is helping in the ripening of the food. ठीक है, ऑक्सिन हेल्प्स फॉर दी सेल डिवीजन, आई मीन फॉर दी सेल इलोंगेशन. ग्रोथ में प्लांट की हेल्प करता है, बट द हार्मोन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन इज दी साइटोकाइनिन. दीज आर ऑल प्लांट हार्मोन्स है ना. सो ईदर दे विल एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर और दे विल एक्ट एज ग्रोथ प्रमोटर. So ethylene is one of the hormone which is actually responsible for the fruit ripening. ये भी आपको मिल जाएगा क्लास 10th में
क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, आपके टॉपिक प्लांट हार्मोन से, ठीक है. सो आई गेस यस बेटा. Phytohormones are the plant hormones. Phyto means plant. ठीक है. Phytohormones are the plant hormones. Okay बेटा. ठीक है. तो these hormones can be act as promoters, that is the plant promoters, growth promoters, or it can be act as the growth inhibitor. ठीक है. So I guess that was all about the paper, that is UP 2019. Okay, तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ, you people have learned the topic diversity in living organisms. Yes, ma'am. आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया है? Yes or no? No. इसीलिए आई एम आस्किंग बिकॉज यू नो 2 or 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. NTSC स्टेज 2 का पेपर आई वाज डिस्कसिंग इन अ सेशन एंड देयर आर फाइन 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एंड आई गेस दिस टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम योर CBSE सिलेबस ड्यू टू पेंडेमिक. सही बात है? Yes, ma'am. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, अभी हमारे पास टाइम है तो कर लें डिस्कस. व्हाट से? Yes, ma'am. चलो लिखते हैं टॉपिक. सॉरी सी, देखो ना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा सरफेस लेवल बता दूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन रीच टू द राइट आंसर. ठीक है. तो हमारा टॉपिक, जस्ट अ मिनट, हमारा टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. तो इस टॉपिक में बेसिकली जो आपने छोड़ दिया, आप नहीं पढ़ पाए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इस टॉपिक में डिस्क्रिप्शन है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. और जनरली क्वेश्चंस जो है एनिमल किंगडम के फाइलम्स से आते हैं, यानी कि उन फाइलम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से पूछा जाता है आपसे. ठीक है. तो बहुत डिटेल में ना जाके बिल्कुल सरफेस लेवल पे मैं रख रही हूँ. अभी आई एम डिस्कसिंग द डिफरेंट फाइलम्स प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम. एंड यू नो व्हाट, आपको ये फाइलम का नाम ना अगर आप सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स अपने आप ही याद रहेंगे, क्योंकि इसका सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन देयर प्रोग्रेसिव नेचर. किस सेंस में प्रोग्रेसिव नेचर बोल रही हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम्स अ लिटिल. ठीक है. तो फर्स्ट फाइलम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ cells and the phylum name is Porifera. नाम सुना है आप में से किसी ने इसका? Porifera. सुना है? दिशा ने सुना है? तो टॉपिक तो हटा दिया था बेटा. हाँ बेटा. ओके. ईशानवी बेटा, टॉपिक तो हटा दिया था, तूने खुद से पढ़ा ये टॉपिक? नहीं मैम, मैं लास्ट ईयर भी थी इन्फिनिटी में, तो सर ने थोड़ा लाइक पढ़ाया था थोड़ा. अच्छा, ओवरव्यू दिया था काइंड ऑफ. Yes, ma'am. Okay, that's very good. So Porifera is first phylum. Next is Coelenterata. Next is Coelenterata. Third is, I'm just writing the name as of now to tell you. Then is Ctenophora. आपकी क्लास 9th में ना टेनोफोरा का जिक्र नहीं है, बट क्लास 11th में when you will discuss these phylums, टेनोफोरा is given. Next is Platyhelminths. Then is Aschelminths. Then is Aschelminths. Then is Annelida. Then is, yes, बिल्कुल सही बात, ऑर्थोपोडा. इसके बाद बताओ कौन सा फाइलम आएगा? एनीवन? मॉलस्का. बिल्कुल ठीक बात बेटा. नेक्स्ट इज लास्ट वन, Echinodermata. ठीक है. तो ये फाइलम्स पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लाटीहेल्मिन्स, आस्केल्मिन्स, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्म्स. ठीक है. तो ये सारे फाइलम्स बेसिकली दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, ध्यान रखना है. दे आर नॉट, दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेटा. ठीक है. इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. यू नो, हेमिकॉर्डेटा को पहले इट वाज कंसिडर्ड एज chordates only due to a particular feature, but later on it was discovered that there is no chordata present, there is no vertebral column present, or the notochord I would say,
primitive version of the vertebral column is notochord. So hence it was removed from the phylum Chordata, and now we learn it as a separate phylum, that is Hemichordata. ठीक है, तो ये इतना हमें पढ़ना है, and then it will be the chordates. ठीक बात है. So this is the phylum non-chordates and hemichordata then chordates. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको दो तीन स्पेसिफिक फीचर जो हैं आपकी एनटीएससी स्टेज 1 के हिसाब से जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट ओनली आई डिस्कस विद यू. ठीक है, इज इट ओके? चलो फर्स्ट फाइलम डिस्कस करें थोड़ा सा फिर. फर्स्ट फाइलम बताओ हमने कौन सा लिखा था? यस, फर्स्ट फाइलम वाज व्हाट? पॉरीफेरा. बिल्कुल, तुम लोग रेस्पॉन्ड करोगे ना तो मुझे लगेगा कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो. पॉरीफेरा की बात कर लेते हैं. पॉरीफेरा में किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम है, ये बताना है आपको. तो पॉरीफेरा में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है. तो इसमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर. मतलब सेल्स बने हैं, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज नहीं बनाए, तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक बात है? यस और नो? अच्छा, इस फाइलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फीचर, सिंपल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, तो आपको आंसर करना है पॉरीफेरा. देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम मीन्स what it comprises of? It comprises of inlets and outlets. देखो पॉलीफेरेंस जो होते हैं ना वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, पानी के अंदर रहते हैं, तो इनका सारा प्रोसेस, सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस वही चलते हैं. तो बेसिकली इनमें ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ऑस्टिया आर व्हाट? ऑस्टिया आर इनलेट्स. ठीक है, तो पानी यहां से अंदर गया. कहाँ पानी? वाटर करंट कैसे अंदर गया? ऑस्टिया के थ्रू ऑर्गेनिज्म में गया अंदर. देन वहां पर ऑस्टिया के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जिस की कैविटी, सील मतलब कैविटी, है ना, तो इसलिए स्पॉन्जिस की कैविटी स्पॉन्जोसील. देन देयर इज एन आउटलेट जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम. तो ऑस्क्यूलम आर दी आउटलेट्स एंड इनलेट्स आर दी ऑस्टिया. पानी अंदर गया, स्पॉन्जिसील में गया, वहां पे सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस किए, एंड देन इट गोज आउट विद द हेल्प ऑफ आउटलेट, दैट इज ऑस्क्यूलम. सो दिस ऑल कंप्राइजेस व्हाट? दिस ऑल कंप्राइजेस वाटर कैनाल सिस्टम. दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द एनिमल्स प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा. मतलब दिस इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द पॉरीफेरन. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए ऐसे कि इन विच फाइलम वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, अनडाउटेडली यू विल मार्क पॉरीफेरन. तो ये सिर्फ इन ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है जो कि पॉरीफेरेंस होते हैं. ठीक बात है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक फीचर है. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. बहुत ज्यादा आई एम नॉट डिस्कसिंग, ठीक है, आई एम डिस्कसिंग जस्ट 2 or 3 फीचर्स विच इज प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलर फाइलम्स. नेक्स्ट इज सिलिंट्रेटा, है ना. सिलिंट्रेटा की बात कर लें. इस फाइलम को हम और क्या बोलते हैं? निडेरिया. क्या बोलते हैं? निडेरिया. एक क्वेश्चन भी था, हमने डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ. देयर वाज अ पेपर जिसमें इसके बेस्ड क्वेश्चन था. सिलिंट्रेटा को कॉमनली निडेरिया बोलते हैं. पॉरीफेरा में हमने डिस्कस किया सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे क्या हुआ? सेल्स कंबाइन हो गए, एग्रीगेट हो गए, क्या बन गए? टिश्यूज बन गए. दैट मीन्स यहां पे कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ. एब्सोल्युटली. हु सेड दिस? बिल्कुल ठीक बेटा, आलिश, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. एग्रीगेट हो गया सेल का, सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लिए, और इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है सिलिंट्रेट्स में. ठीक है. नाउ एक चीज बताना चाहती हूं आपको, व्हाई दिस फाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया. क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में जो कि सिलिंट्रेट्स हैं, देयर आर वन टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स which belongs to the phylum
दैट इज सिलिंट्रेटा। देखो ना, निडोब्लास्ट से निडेरिया नेम को निकाला है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? निडोब्लास्ट सेल्स, हेंस दिस फाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया, और द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज निडेरियंस। ठीक बात है, समझ आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट फाइलम्स, है ना? तो ध्यान रखनी है ये बात। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में जान लो, दिस सेल्स आर एक्चुअली दी बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये। स्टिंगिंग सेल्स मीन्स किस तरह से हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म की? इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। एक तो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे, दूसरा इट ऑल्सो फॉर्म्स द डिफेंस मैकेनिज्म, है ना? तो ये दोनों तरीके से काम करते हैं निडेरियंस के लिए, ठीक है। एक लास्ट फीचर अबाउट दिस यू मे नो, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन प्रेजेंट। ऑल्टरेशन ऑफ generation present. Alteration of generation means the organism have two external forms. External form means appearance में वो दो टाइप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? One is known as polyp and the other is known as medusa. ठीक है, पॉलिप जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं और मेड्यूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप, लाइक इस तरह से करके कुछ बॉडी उनका होता है, नीचे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला जो होता है दिस इज लाइक दिस वन, ऐसे करके कुछ अम्ब्रेला शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप, सॉरी लाइक दिस सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होगा। टेंटिकल्स कैसे होंगे? अबव होंगे, ठीक है। तो वन इज पॉलिप एंड द अदर इज मेड्यूला। यस बेटा? like jellyfish. हाँ, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये दो एक्सटर्नल फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है यहाँ पे कि पॉलिप कैन प्रोड्यूस मेड्यूसा, मेड्यूसा कैन प्रोड्यूस पॉलिप। दिस इज कॉल्ड इज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशंस विच इज सीन इन केस ऑफ निडेरियंस, ठीक है। तो तीन फीचर पढ़े हमने, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, पॉलिप एंड मेड्यूसा। नंबर टू, दैट इज व्हाट? Nidoblast cells, stinging cells, and these organisms have tissue level of organization. क्लियर है कहानी यहाँ तक की सबको? ठीक है, तो बहुत दिस इज ऑल अबाउट दी सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पहले बताओ मैंने क्या लिखा था? यू टेल व्हाट आई हैव रिटन। एनीबडी ध्यान से सुन रहे हो अगर तुम मेरे को भूल गए? नो, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन, इसका मतलब नोटबुक में नोट भी नहीं किया है, अदरवाइज यू कैन रीड फ्रॉम ए नोटबुक। नोट नहीं किया किसी ने नोटबुक में? मैंने बोला था जब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ विच इज रिलेटेड टू एनटीएससी स्टेज 1, तो यू शुड राइट इन योर नोटबुक्स। बेटा लिखा क्यों नहीं नोटबुक्स में? अभी हम जितना भी डिस्कस करेंगे एवरीबडी विल राइट इन देयर नोटबुक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जब मैं लूंगी तो आई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट, देखती हूँ कितना पढ़ के आते हो क्लास में। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तब बहुत अच्छे आंसर्स करते हो, दैट इज वेरी गुड, बट देन व्हेन यू विल हैविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देन ऑल्सो यू राइट। हाँ, हर्षित ने हमें बता दिया, हर्षित के पास नोटबुक है, दैट मीन्स नोटबुक्स में से देखा हर्षित, या याद था तेरे को बेटा? है बच्चे? इट इज टेनोफोरा, इट इज टेनोफोरा, टी सी साइलेंट होता है इसमें, इट इज टेनोफोरा। थर्ड फाइलम इज, ये आपकी ना क्लास 9th एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप 11th में इसको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा टेनोफोरा फाइलम, ठीक है। तो ये फाइलम जो है टेनोफोरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम। स्मॉलेस्ट फाइलम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, तो इसलिए इट इज द स्मॉलेस्ट फाइलम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें, ऐसे कौन सा स्पेसिफिक फीचर है? These animals which belongs to the phylum Ctenophora, they are exclusively marine animals. मतलब they are exclusively marine in nature. That means देखो habitat इनकी aquatic है ना? और अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन इस फाइलम में विच इज टेनोफोरा, all the organisms present are marine in nature, there is no fresh water present,
ठीक है, देयर इज नो फ्रेश वाटर प्रेजेंट, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस फाइलम इज हैविंग द ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मराइन इन नेचर, ये किसका फीचर है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक फीचर और डिस्कस कर लेते हैं टेनोफोरा का, दैट इज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, है ना, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मीन्स एमिट लाइट, so these organisms emit light, that is why they show the property of bioluminescence, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम ध्यान रखना है, देखो इस ये जो फाइलम का नाम क्या है, टेनोफोरा, और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, टेनोप्लाना, लर्न हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना, फाइलम के नेम पर ही है, फाइलम नेम इज टेनोफोरा एंड द ऑर्गेनिज्म नेम इज टेनोप्लाना, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम टेनोफोरा। तीन स्पेसिफिक फीचर क्या डिस्कस किया हमने, स्मॉलेस्ट फाइलम, एक्सक्लूसिवली मराइन इन नेचर, एंड द थर्ड वन इज दैट इज शोज बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। नोट कर रहे हो आप लोग सब नोटबुक में अपनी, यस और नो, बताओ, जस्ट अ मिनट। So that was basically, just a second, ठीक है, तो that was all, like this was what was that was टेनोफोरा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यहीं से बढ़ लेते हैं आगे, क्या है हमारे पास नेक्स्ट फाइलम, क्या था हमारे पास, बताओ, टेनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आएगा, बोलो, टेनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आएगा भाई, अभी तो बताया था आप में से किसी ने मुझे बताया था, मुझे याद है, प्लैटीहेल्मिन्स, बिल्कुल सही बात, प्लैटीहेल्मिन्स। देखो प्लैटी का क्या मतलब होता है, प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्स मीन्स वर्म्स, ठीक है। तो कॉमनली दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, क्या बोलते हैं इनको, कॉमनली फ्लैट वर्म्स। क्यों बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, रीजन वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, क्योंकि दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स। डॉर्सो और वेंट्रल का मतलब समझते हो, व्हाट इज डॉर्सो एंड वेंट्रल स्टैंड्स फॉर, नहीं समझते, डॉर्सो मीन्स बैक पोर्शन, है ना, और वेंट्रल मीन्स फ्रंट पोर्शन। जैसे अपनी बात कर लें तो हमारा बैक पोर्शन दिस वन डॉर्सल एंड द फ्रंट पोर्शन इज वेंट्रल, ठीक है। तो बैक इज डॉर्सो एंड द फ्रंट इज वेंट्रल, सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स, ठीक है, ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक फीचर है। नाउ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, that is they have an organ which is present in the form of cells and these are called as flame cells, ठीक है, flame cells present होते हैं। flame cells जो हैं these are the organs of, क्या काम करते हैं organisms के लिए, excretion and osmoregulation, this helps in osmoregulation and excretion। excretion सब समझते हो, what is excretion, आपने पढ़ा होगा, yes, नहीं, रिमूवल ऑफ वेस्ट बोलोगे आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारे को ना, अगर एनटीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन, तो अगर एक ऑप्शन में है रिमूवल ऑफ वेस्ट इज एक्सक्रीशन, एक ऑप्शन में है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज एक्सक्रीशन, तो क्या सही आंसर होगा, yes, unless and until it is mentioned it is metabolic waste, this is not the correct option। अगर मेंशन नहीं है तो आप सही आंसर नहीं बोल रहे हो, ना ही सही आंसर पे टिक मार्क कर रहे हो, तो आप उस ऑप्शन को चूज करोगे जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट इज गिवन, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी, है ना, टू मेंटेन दी आयनिक बैलेंस इन द बॉडी, और ये दोनों ही काम
फ्लैट वर्म्स के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा सेल्स करते हैं? फ्लेम सेल्स करते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात हमें। तो फ्लेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। कहानी समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग है, हाँ, टू नो अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें ना एक आपका ना नीट लेवल पे एक क्वेश्चन आ चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके टॉपिक में है वो चीज। आपके क्लास 10th टॉपिक जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना? तो तुम लोगों ने उसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने? तो उसमें एक आपने मेथड पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। मालूम है सबको? मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ओके। रीजेनरेशन, यस, पढ़ा है किसी ने? चलो खैर, रीजेनरेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू मेकअप द लॉस्ट पार्ट, है ना? मतलब कोई लॉस्ट पार्ट है ऑर्गेनिज्म का और वो पार्ट विल ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीजेनरेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट हो गया विद द लॉस्ट पार्ट, सो दैट इज रीजेनरेशन। और मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं टू लिंक टू रीजेनरेशन, टू लिंक विद दिस प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इज दैट प्लैटीहेल्मिन्थ्स का देयर इज वन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया, है ना? नाम सुना है सबने? तो Planaria is the highest power of regeneration in the entire animal kingdom. Very important point. नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन आ चुका है और आपके एनटीएससी में भी आ सकता है क्योंकि आपके पास आपके क्लास 10th में टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना? तो उसमें आपने तो आपने रीजेनरेशन जरूर पढ़ा होगा, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस रीजेनरेशन में I mean, this is the one method through which the planaria reproduce and it has the highest power of regeneration in the entire animal kingdom. So please do learn that. This is important. ठीक है? So that's all about the platyhelminths. एक चीज और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। देखो, जैसे हमने पॉरीफेरा पढ़ा तो पॉरीफेरा में हमने क्या जाना? पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, है ना? देन सिलेंट्रेटा आया, टिश्यू लेवल बन गया। मैंने बताया था आपको सिलेंट्रेटा में क्या होते हैं? सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज। सेम गोज विद दी टेनोफोरा। टेनोफोरा में भी क्या है? सेल्स एग्रीगेट एंड फॉर्म टिश्यूज, हेंस टेनोफोरा एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में देयर आर ऑर्गन्स प्रेजेंट, और ऑर्गन्स हम किसको बोल रहे हैं? फ्लेम सेल्स को, because they are responsible to perform some metabolic functions in an organism, and the metabolic function is excretion and osmoregulation. ठीक है, तो फ्लेम सेल्स ऑर्गन किस में बन गए? आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। ठीक बात है, समझ आ रही बात? तो फर्स्ट फाइलम सेल, सेकेंड फाइलम टिश्यू, थर्ड फाइलम टिश्यू, फोर्थ फाइलम इट इज दी ऑर्गन्स। सो देखो, एक चीज मैं आपको जब इनिशिएट करा था मैंने टॉपिक को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब फाइलम की सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हमें अगर सीक्वेंस में लर्न होगा फाइलम तो हमें बहुत सारे फीचर्स पता चल सकते हैं। जैसे एक फीचर आपको यही याद रहेगा, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट फाइलम। ये देखो, प्रोग्रेसिव नेचर में है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले में सिर्फ सेल्स थे, उसके बाद टिश्यू बने, उसके बाद ऑर्गन भी बन गए। तो यानी कि कैसी नेचर है? अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसी नेचर है फाइलम्स में? प्रोग्रेसिव नेचर है। सही बात है? यस और नो? ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट फाइलम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? आफ्टर प्लैटीहेल्मिन्थ्स मैंने क्या बताया आपको? जल्दी बताओ। एस्केल्मिन्थ्स, बिल्कुल सही बात। वी हैव रिटन एस्केल्मिन्थ्स। एस्केल्मिन्थ्स को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? निमैटोड्स। बिल्कुल सही बात बेटा, इट इज निमैटोड्स दैट वी से। ठीक है, तो एस्केल्मिन्थ की बात कर लेते हैं।
Askelminth को commonly we call them as roundworms. What we call them as? We call them as roundworms. Okay? क्यों बोलते हैं round? You know, when we view under the microscope in a cross section, we'll find these organisms appear round in nature. है ना, वर्म्स होते हैं जनरली, तो वो राउंड हो जाते हैं और हमें वैसे ही दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, इसलिए दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स. समझ में आई बात? ठीक है. अब देखो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं बस. अब यहाँ पे एक कहानी और डिफरेंट शुरू हो गई. कहानी ये है यहाँ पर कि हम इस ऑर्गेनिज्म में फीमेल्स और मेल्स का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं. किसके बेसिस पे कर सकते हैं? फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. इसमें क्या होता है? फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. क्यों होता है ऐसा? क्यों लॉन्ग होती है फीमेल मेल से? रीजन इज, देखो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म which is actually a very common organism of the phylum Askelminths, and that is what? That is Ascaris, है ना? And the other Ascaris is having like this. आपकी NCERT 11th में ये डायग्राम भी बना हुआ है. तो बेसिकली मेल, दिस इज मेल. कैसे पता चल रहा है मेल? बिकॉज मेल हैज कर्व्ड एनस and this is female, hence female is longer than male. So that means we can differentiate between the sexes as well. In this phylum, sexes are separate. We can differentiate between the sexes on the basis of some external morphology. है ना, एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये फीमेल है और मेल है. अब देखो हम कह रहे हैं मेल के पास कर्व्ड एनस है, तो अगर हम कह रहे हैं कि मेल के पास कर्व्ड एनस है, एनस क्या होता है? आप सब लोगों ने डाइजेशन पढ़ा है. एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सही बात है? तो अगर एनस प्रेजेंट है तो माउथ भी प्रेजेंट होगा नहीं होगा? तो माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है, तो क्या बन गया ये? व्हाट इज दैट? दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? सही बात है. तो यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक क्या पढ़ा था हमने कि ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. यहां पे तो पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. सही बात है कि नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम ही तो है कि नहीं? तो इन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. यानी कि पहले सिर्फ सेल थे, फिर सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बने सिलेंट्रेट्स एंड टेनोफोरेंस में, फिर वो टिश्यू के बाद एग्रीगेट होकर ऑर्गन्स बने. ऑर्गन्स किस में बने? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बने एज फ्लेम सेल्स. फिर फ्लेम सेल्स के बाद हम बात कर लेते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद बात कर लेते हैं एस्केलमिन्थ्स की. एस्केलमिन्थ्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस. दैट मीन्स एस्केलमिन्थ्स हैव कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट. सही बात है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है. तो आज ऐसा करते हैं, अभी इस सेशन में we'll discuss up till Askelminths. In the next video, in the upcoming session, we'll discuss a paper as well and the remaining phylums in the next video. Is this okay to everyone? Okay, ma'am. ठीक है. तो but I will expect in the next session I'll discuss a different paper from some other state, from some other year, but I'll also ask the questions what we have done in the class today about the different phylums. Is it okay to everyone? Ma'am, can you also discuss the paper of year 2020? Yes, I will discuss in the next session only. I'll discuss with you, beta. Don't worry. Okay. चलिए आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. होप आप लोगों को समझ आया होगा and you people liked it and it will be fruitful for us. अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी एग्जाम NTSC स्टेज 1 में हेल्प कर रहा है तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel also so that whenever we upload any video you will get the notification. Thank you all for watching the video. That's all for the today's session.